Hello, my lovely traders. I hope you all are doing well. Now, what an amazing another day into the markets. We were discussing this exact same thing yesterday, that it might be the calm before the storm. Yesterday, we saw a good consolidation into the markets, and the reason was the RBI governor's statement that was due today about the regarding the policy, the interest rate policy. Now that decision is out now, and the governor's comments were in general positive, and they somehow showed some positive signs of economic recovery, and that suddenly sparked the interest among the investors. And today we can see that the Bank Nifty index shot up. The Nifty 50 index has crossed the 14,800 level again for the fourth time since March. And now the question is कि आगे क्या होने के चांसेस हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. एवरी सिंगल वीडियो दैट वी मेक इज एज गुड एज अ मास्टर क्लास. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज pick up a pen and a paper and start making notes of every single video that we make, because in every video we divide the analysis video into three major sections. हम तीन sections में इसको divide करके बात करते हैं. The first section is about the global and the local news and the events that affected our markets for the day and that can affect our markets tomorrow or in upcoming weekly or monthly expiries. And the second part is about today's trading session analysis. आज जो हमने ट्रेड लिए वो क्यों लिए, कैसे लिए, उनके पीछे के क्या लॉजिक थे, और आज इंडेक्स ने जो बिहेवियर दिखाया उसके पीछे का क्या कारण था. Third, in the last section is about markets behavior that are possible for tomorrow's trading session. यानी कल के ट्रेडिंग सेशन, कल वीकली एक्सपायरी भी है, कल क्या होने के चांसेस हैं, ये हम अपने थर्ड सेक्शन में डिस्कस करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस वन मोर थिंग इन द फोर्थ सेक्शन. देयर आर फ्यू questions from our precious members that the support team just told me कि कुछ questions हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं चाहूंगा कि मैं आप सभी के साथ वो सवाल भी शेयर करूं और उन सवाल से रिलेटेड एक ऑप्टिमम जवाब भी शेयर करूं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है कुछ वो सभी लोग फेस करते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में. हम लास्ट में उन क्रूशियल क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे. व्हाट आई वांट यू टू डू इज take these analysis videos very seriously, make notes and follow one simple rule, that learning is the power of every intraday trader. So make sure that you learn enough so that you can earn enough. So this is Utkarsh Bhargava. We are watching Rolling Bulls, the stock market show. Okay, let's quickly jump into the video and let's see what and how the markets, what was the behavior in the markets today and what can we expect for tomorrow. Let's quickly jump onto the first section. Let me turn on the screen recording for you. Okay, yes. So, as we can see the first, before moving to the first section, let me quickly show you the advance to decline ratio for the index. There were overall 44 advances in the index and just 6 declines. So it was a pretty good advance to decline ratio in the index. And if we'll talk about the top gaining sectors for the index, let me quickly open up the gainers. Okay, so if you can see very clearly, the top gainers for the index were the Nifty PSU Bank, the Nifty PSU Bank sector, and it was pretty obvious after the RBI governor's statement. It was not, I won't say anything is obvious in the market, but then again after such a huge fall from past few days, आज के दिन में ये जो जनरल पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर आई, इस कारण से मार्केट को ऊपर जाना बनता था, and that happened. Other than that, Nifty small cap, Nifty auto and Nifty IT as well. Let me just scroll it down. Yes, so Nifty IT and Nifty auto as well, they all moved up for the day. Okay, so what were the losers then? In the losing section, I don't think we can find any major loser for the index, and I think all the sectors ended in green for the day. So that was one general positive news. Other than that, let's quickly look at the global market scenario as of now, then we'll jump into the post market bites. If you look at the global markets as of now, right now I'm making the analysis video a bit early today. अभी 5:30 ही बज रहा है. So the US markets are not yet open. हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते इस वक्त पे. Global markets में हम अगर बात करें तो SGX Nifty was trading around at plus 4 rupees and it was trading around at 14,867. Global markets के बारे में ज्यादा डिटेल में हम अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे. So we will jump on to our notes section so that we can discuss about the markets behavior today. Okay, so post market bites.
Now this is something important. Okay, so hot news for the day, as we have been discussing in past 2 to 3 analysis videos. मैंने कल बहुत specifically ये कहा था, this is the calm before the storm and the RBI governance announcement after the 3-day monetary policy committee meeting made the markets to go up. Secondly, Nifty opened the day at 14,726 with a small gap up and fell nearly 80 points in the first 1 minute. But गजब की देखने वाली बात ये है कि ये जो 80 पॉइंट का फॉल था, ये उस फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के साथ ही पूरी तरह रिकवर हो गया, एंड देन समहाउ निफ्टी स्टार्टेड टू मूव अप. दैट शोड द स्ट्रेंथ ऑफ द बुल्स टुडे इन द मार्केट. दैट सच वाज द स्ट्रेंथ. 14,880 वाज टेकन एज अ रेजिस्टेंस. मैंने टेलीग्राम पे लाइव मार्केट के अंदर भी इस रेजिस्टेंस के बारे में आपसे बात करी थी कि 14,880 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए निफ्टी को. इनकेस अगर 14,880 का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है तो 14,950 14,960 का फिगर भी देखने को मिल सकता है. बट देन टुडे वाज नॉट द डे फॉर इट. मे बी टुमारो दैट कैन हैपन, एंड व्हाई कैन दैट हैपन वी विल डिस्कस राइट नाउ. Let me quickly move ahead. Nifty then consolidated and closed the day at 14,819. That was up by 135 points. So it was 0.92% up for the day. All sectoral indices closed in green today. Nifty PSU Bank being followed by Nifty PSU Bank was at the top and followed by Nifty Auto and Nifty IT, as we have discussed from the top gainers and losers section. Now, what happened in the RBI committee meeting, and what were the decisions that we are going to discuss? The repo rate was kept unchanged at 4% by the Reserve Bank of India. Now, this decision was primarily taken by the RBI governor, the monetary committee, because the overall circumstances of the economy as of now अभी बहुत ज़्यादा positivity market के अंदर नहीं है, recovery हो रही है. The people, the investors, the economy is still recovering from the losses that were suffered because of the coronavirus situation. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी को strengthen करने के लिए it was a good decision by the RBI committee to keep the repo rate unchanged. And other than that, metals have been doing very good from past few trading sessions. In general, we have been discussing about it. Steel shares including JSW Steel, Tata Steel and SAIL all closed up. Steel shares, JSW Steel was up by 4.6%. Tata Steel also did well overall for the day. SAIL closed down closed by 1.37% down for the day. Okay, now Adani Ports that we discussed yesterday, Adani Ports shot up a lot yesterday, but today it felt the profit booking pressure. Adani Ports और साथ में Adani, it's Adani, I have written Adani. So okay, Adani Ports along with Adani Enterprises felt the profit booking pressure for the day, और आज उसके अंदर एक गिरावट देखने को मिली, but then session end होते होते somehow it was recovered, to some extent it recovered. Okay, so बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी वाज मोर बुलिश इन जनरल थ्रू आउट द डे. पहले मिनट में इंडेक्स निफ्टी की तरह नीचे आया और उसके बाद इंडेक्स ऊपर पूरी तरह चला गया, 700 पॉइंट तक ऊपर गया, और बैंक्स उसके बाद स्टेबलाइज हो गए जब आरबीआई गवर्नर का पूरा अनाउंसमेंट कंप्लीट हो गया. बैंक निफ्टी क्लोज द डे एट 32,991. बीच में 33,000 का लेवल भी टेक आउट कर लिया गया था, बट देन इट केम डाउन एंड क्लोज्ड बिलो 33,000. सो 33,000 सीम्स लाइक अ गुड रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ, बट कल है एक्सपायरी का दिन और इस बात के काफी चांसेस हैं कि कल ये लेवल निकल जाए. देखिए, इस लेवल को निकलने के लिए जरूरी नहीं है कि बायर्स बहुत ज्यादा आ जाएं. अगर जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग भी करना चालू करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग के कारण भी ये 33,000 का लेवल इमीडिएटली ब्रेकआउट हो सकता है, सिंस इट्स एन एक्सपायरी डे एंड अ लॉट ऑफ selling pressure. Nifty Bank has been feeling a lot of selling pressure from past so many trading sessions. तो chances है कि 33,000 कल टेक आउट हो जाए. ओके, पॉलिसी रेट्स अनचेंज थे एंड इट वाज मोस्ट वेलकम बाय द इन्वेस्टर्स. जो लॉकडाउन की इन जनरल और नाइट कर्फ्यू की वरी थी इन्वेस्टर्स के अंदर अबाउट द मुंबई एंड द दिल्ली लॉकडाउन न्यूज एंड द कर्फ्यू न्यूज, कहीं ना कहीं उसमें उस वरी में उस वरी के अंदर थोड़ी सी कमी आई है और ओवरऑल पॉजिटिविटी थी बिकॉज ऑफ द आरबीआई गवर्नर्स स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट टू लुक आउट फॉर विल बी द प्राइम मिनिस्टर्स मीटिंग विद द चीफ मिनिस्टर्स दैट इज गोइंग टू हैपन टुमारो. नाउ if everything goes well, we can see 14,900 being broken tomorrow in the day. The reason being meeting जो है वो शायद हो सकता है, हम कल भी इस बारे में डिस्कस किए थे. It might be about increasing the intensity of vaccination drive and vaccination को 18 प्लस की यंगर जो पॉपुलेशन है, that is the most working population or the most outgoing population for our country, अगर वहां से वैक्सीनेशन चालू कर दिया जाए तो हो सकता है उससे भी एक पॉजिटिविटी आए मार्केट के अंदर, क्योंकि
these 18 plus people like you and me are the carriers for the coronavirus, the biggest carriers for the coronavirus amongst द होल कंट्री। तो इससे काफी हेल्प हो सकती है कोरोना वायरस की सिचुएशन को कंट्रोल करने में, एंड दैट कैन टर्न आउट टू बी अ बिग पॉजिटिव न्यूज फॉर द इन्वेस्टर्स एंड फॉर द मार्केट्स एज वेल। ठीक है, नाउ इफ वी लुक एट द गवर्नर्स स्पीच क्लोजली, देयर वाज अ जनरल पॉजिटिविटी इन हिज टोन एंड दैट इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग्स द इन्वेस्टर्स। दिस एडेड द फ्यूल टू द PSU बैंक इंडेक्स एंड निफ्टी बैंक शॉट अप सिग्निफिकेंटली, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ चार्ट्स में आगे बढ़ने से पहले हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, 1 सेकेंड। ओके यस, चार्ट्स में आगे बढ़ने से पहले हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं हमारा आज का ट्रेडिंग प्रोफाइल। सो आज के ट्रेडिंग प्रोफाइल की अगर बात करें, सो वी टुक 2 ट्रेड्स। हमने एक थर्ड ट्रेड सेटअप भी बनाने की कोशिश करी थी, बट थर्ड ट्रेड सेटअप में हमारा बाइंग लेवल आया ही नहीं, तो हम एंटर नहीं कर पाए तो ट्रेड क्लोज हो गया। सो इन जनरल वी टुक 2 ट्रेड्स, वी विल टॉक अबाउट देम। फर्स्ट वी टुक ट्रेड इन निफ्टी 50 इंडेक्स एंड वी टुक 14,800 कॉल ऑप्शन। वी बॉट एट 75 to 77 जोन, 75 से 77 के बीच में हमारी बाइंग थी, एंड देन we kept a small stop loss just at 62 and our target was about 90, and we had even bigger targets, but then because of रेजिस्टेंस देयर वाज सम रिट्रेसमेंट, तो हम अपने टारगेट को रिस्पेक्ट करके एग्जिट हो गए। अगर होल्ड करके रखते तो ये ऑप्शन और भी ज्यादा गया था, 110 120 के आसपास तक ये ऑप्शन गया था, वी कुड हैव मेड मनी। बट स्टॉक मार्केट के अंदर मैं हमेशा बहुत सिंपल चीज बोलता हूं कि अगर आपको आपके टारगेट पता है और आपका टारगेट आ चुका है, सो डोंट बी ग्रीडी माय फ्रेंड। ग्रीड इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एवरी डे ट्रेडर इन द स्टॉक मार्केट। सो अगर आप ग्रीडी नहीं होंगे तो आप ज्यादा पैसा बना पाएंगे स्टॉक मार्केट से। सो वी डिडंट गेट ग्रीडी एंड वी बुक्ड जस्ट अ स्मॉल 13 point profit and made 975 rupees per lot over there. Now my lot size was different and your lot size could have been different as per our risk appetites, and we made good money in this call option. Then we took BankNifty 30,600 call option and 520 रुपए पे लेने के बाद 580 तक वो इजीली गया, इससे ऊपर भी गया, बट हमने 580 पे अपना प्रॉफिट्स बुक किए। 460 पे हमारा स्टॉप लॉस था और 1:1 तकरीबन रिस्क 1:1 से ज्यादा ही था रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, एंड वी बुक्ड 60 पॉइंट्स ओवर देयर एंड 1500 रुपए पर लॉट के हिसाब से उसमें भी फायदा हुआ। सो 2475 वाज इन जनरल द प्रॉफिट फॉर द डे इफ यू वुड हैव ट्रेडेड विद जस्ट 1 lot. Now my personal profits I have already shared on Telegram. मेरे personal profits those were above 40,000 rupees for the day. मैंने मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड लिया, मुझे मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कम लॉट साइज में ट्रेड लेना था, तो मैंने उस हिसाब से ट्रेड लिया। आपने आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लिया होगा। You have to make sure that you manage your position size as an intraday trader. बहुत से लोग क्या करते हैं, 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके मार्केट में आते हैं और पूरे 1 लाख रुपए से ही पहला ट्रेड लेके बैठ जाते हैं। Now the thing is, if this trade goes wrong, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गलत अगर जाती है तो पहली बात तो बहुत से लोग स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट ही नहीं करते। They wait till the time their capital becomes almost zero and then they get out of the market. और दूसरी बात, सबसे बड़ी गलती है कि पोजीशन साइज मैनेज करना आपको सीखना होगा। अगर आप 1 लाख रुपए कैपिटल के साथ आए हैं तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप उसमें से सिर्फ 20 से 30% कैपिटल ही एक ट्रेड के अंदर डालें और उसमें भी जगह छोड़ें एवरेज आउट करने की अगर जरूरत पड़ती है तो। बहुत से लोग यहां गलती करते हैं और इस चक्कर में अच्छे खासे प्रॉफिट्स को बर्बाद कर लेते हैं। नाउ व्हाट आई हैव बीन सेइंग एवरी डे इन एवरी एनालिसिस वीडियो टू ऑल ऑफ यू इज अ वेरी सिंपल थिंग। डिसिप्लिन इज द ओनली की टू सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट। लर्निंग तो होती रहेगी, हम रोज ही सीख रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि लर्न करने के बाद भी अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे ना, मार्केट आपको बाहर कर देगा। सो यू हैव टू स्टे डिसिप्लिन। ओके, नाउ व्हाट वील डू इज वील क्विकली जंप ऑन टू द charts. So we have discussed about the whole thing. Now we'll see India VIX. India VIX is again down. Let me show you. India VIX is down to 20.29. Yesterday it was approximately at I think 20.93 levels. Yes, 20.9 के आसपास था yesterday. और आज की बात करें तो आज 20.29 पे आ गया है. Now that is a good sign for support based buying. It is good sign for the bulls to be back in action. 20 के आसपास इंडिया विक्स अगर रहता है so that's a good thing. Okay, we look at the Nifty 50's option chain data as of now. ऑप्शन चेन को अगर देखते हुए हम बात करें तो हमको यह समझ में आ रहा है कि 14,700 इज नाउ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी 50 इंडेक्स। ठीक है, 14,700 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 14,900 इस समय एक अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक है, हम ये कैसे देख रहे हैं, हम यहाँ पे कॉल साइड ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहे हैं, दिस इज योर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे पुट साइड ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहे हैं, ये दिस इज योर सपोर्ट। ठीक है, अगर आपने अभी तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मास्टर क्लास नहीं अटेंड करी है, जाके कर लीजिए। इट्स फ्री टू वॉच, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आई विल ऐड इट टू द कार्ड सेक्शन ऑल्सो, क्योंकि ये जो मास्टर क्लास है ये आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। साथ में अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस की मास्टर क्लास भी अटेंड करना चाहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन द रेड सर्कल मेंबरशिप। इट्स जस्ट फॉर 998 रुपीज पर मंथ।
सारी इंपॉर्टेंट ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड मास्टर क्लास एक्सक्लूसिवली रेड सर्कल मेंबर्स के लिए मैं हर वीकेंड लेकर आता हूं. सो यू आर मोस्ट वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रेड सर्कल कम्युनिटी वेयर यू कैन learn enough so that you can earn enough. Okay, now 15,000 is a big resistance my friend. Don't forget the resistance of 15,000. So कल के लिए अगर हम ट्रेडिंग रेंज की बात करें, I can safely assume that trading range from 14,950 on the upside to 14,700 on the downside. कल एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी के दिन वोलेटिलिटी हाई हो सकती है. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी ट्रेड केयरफुली ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी कंसीडरिंग दैट वोलेटिलिटी इज देयर. इसी वोलेटिलिटी के बीच में हम फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. हो सकता है हमको कोई जीरो हीरो ट्रेड मिल जाए. वी लुक इनटू इट, अदरवाइज वील ट्राई टू ट्रेड इन दिस वोलेटिलिटी एंड वील ट्राई टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट. हमने अभी ऑप्शन चेन को देखते हुए लेवल्स की बात करी है. लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द निफ्टी 50 चार्ट हियर. Yes, so these are the charts. Let me open up today's one day chart. Yeah, 1 second. Yes, so this is how our day looks like as of now. आज के दिन में क्या हुआ मैंने आपको बताया. गैप डाउन नीचे गया और तुरंत पहली कैंडल में ही रिकवर कर गया और उसके बाद इट वाज अ कंसिस्टेंट राइज फॉर द निफ्टी 50 इंडेक्स एंड इट इवेंचुअली got a halt at the resistance of 14,878. Now this is going to be important resistance for tomorrow's trading session as well. अगर ये रेजिस्टेंस कल टूट जाता है, आप इसको R1 मार्क कर लीजिए. मैं आपको अभी बता देता हूं 14,878 का रेजिस्टेंस है आपका R1 है और R2 आपका रहेगा 14,925. ठीक है, ये मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं, नोट कर लीजिए. कल अगर इंडेक्स नॉर्मल ओपन होता है, यहां कहीं ओपन होता है, तो थोड़ी देर अगर हॉल्ट कर जाता है 1 घंटा करीब, तो आपको इंडेक्स ऊपर जाता हुआ दिख सकता है एंड इट कैन टच योर फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ 14,878 एंड इट माइट ब्रेक इट और ऊपर जाके 14,925 पे जाके हॉल्ट कर सकता है इंडेक्स. दैट इज अ पॉसिबल सिनेरियो फॉर टुमारो. 15,000 ब्रेक होना कठिन है, बट 14,979 तक या 14,925 तक इंडेक्स आपको जाता हुआ दिख सकता है कल की डेट में. दैट इज वन पॉसिबल सिनेरियो जो मैंने आपको बताया. बट जस्ट इन केस अगर इंडेक्स नीचे आता है तो इनिशियली सपोर्ट जो है इंडेक्स को कहां पे मिलेगा ये हम डिस्कस कर लेते हैं. इनिशियली सपोर्ट मिलेगा इंडेक्स को 1 सेकेंड. आज का हमारा लो अगर आप देखेंगे, सो दिस वुड बी योर इनिशियल सपोर्ट, दिस वुड बी योर इनिशियल सपोर्ट जोन. यहां हमारा सीपीआर भी था 14,677 वुड बी योर इनिशियल सपोर्ट जोन फॉर इंडेक्स. सपोर्ट 1 यहां कहीं आपको लो दिख सकता है इंडेक्स का. इससे नीचे जाने के चांसेस थोड़े कम है. जस्ट इन केस जाता है तो 14,577 इज योर सपोर्ट 2. बट आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर, आई एम स्ट्रांगली बिलीविंग दैट सपोर्ट 1 इज द मैक्सिमम दैट द इंडेक्स कैन गो डाउन और यहां से वापस एक रिट्रेसमेंट ऊपर की ओर आ सकता है. आज क्या हुआ इसको भी जरा सा हम समझने की कोशिश कर लेते हैं. हमने कहां पे पैसा बनाया ये समझने की कोशिश करिएगा आप. ठीक है, so we took the Nifty 50s trade when this you can see we have a resistance marked over here 1 second, let me clear it off. Yes, okay, यहां पे हमारा एक रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है हमने. द रेजिस्टेंस इज 14,764. ये रेजिस्टेंस मार्क्ड है. मैंने ये पूरा चार्ट टेलीग्राम पे भी शेयर किया था लाइव मार्केट के अंदर. ये रेजिस्टेंस जब यहां पे ब्रेकआउट हुआ, इस मूवमेंट के बाद हमारा एक पाइवट लेवल भी था. यहां पे हमको दिख रहा है 14,794 के आसपास. आपको ये लाल लाइन जो दिख रही है ये हमारा पाइवट लेवल है. पाइवट पॉइंट्स की स्टडी अगर आपने अभी तक नहीं लगा रखी तो लगा लीजिए. इट्स अ लीडिंग इंडिकेटर, इट्स गुड फॉर यू. जब ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो गया और कंसोलिडेट करके पाइवट भी ब्रेक हो गया, उस मूवमेंट पे हमने अपना ट्रेड सेटअप किया था और इस मूवमेंट को कैप्चर किया था. यहां इस जोन में हमने अपना निफ्टी के अंदर ट्रेड सेटअप करके बेसिकली इन 2 कैंडल्स के अंदर पैसा बनाया और वहां पे हमारा अगला रेजिस्टेंस अवेलेबल था. तो आप देख सकते हैं काफी देर तक इंडेक्स उस रेजिस्टेंस पे होल्ड करता रहा. इट केम बैक, इट टुक सपोर्ट. यहां पे जहां पे इंडेक्स होल्ड कर रहा था यहां से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, अगेन रेजिस्टेंस एंड अगेन बैक इन बिटवीन. तो द पॉइंट इज द लेवल्स आर रिस्पेक्टेड वेरी ब्यूटीफुली. क्या आप देख सकते हैं लेवल्स हमेशा रिस्पेक्ट होते हैं. द पॉइंट इज कि आप कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं इन लेवल्स को. कल के लिए क्या ट्रेडिंग लेवल्स है निफ्टी की हमने बात कर ली है. आज क्या हुआ निफ्टी में ये भी हमने बात कर ली है. ठीक है, अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की. बैंक निफ्टी इंडेक्स पे हम स्विच कर लेते हैं अपनी ऑप्शन चेन एनालिसिस को. अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा साइट है, बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं. सो दिस इज sensible.com, www.sensible.com. आप जाके फ्री में वहां पे ऑप्शन चेन देख सकते हैं. big support for बैंक निफ्टी at 32,500 लेवल यहां पे क्लियरली दिख रहा है. वेरी बिग सपोर्ट at 32,000 लेवल, वेरी बिग सपोर्ट. माइल्ड रेजिस्टेंस at 33,000 लेवल, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, ये टूट सकता है. ठीक है, 33,500 इज अ गुड रेजिस्टेंस. ये आपको कल मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 33,500 जाता हुआ दिखेगा. और ये आपका सपोर्ट 1, ये आपका रेजिस्टेंस 1. 32,500 से लेके 33,500 की एक ट्रेडिंग रेंज हमको यहां से मिलती है. नाउ व्हाट वील डू इज वील गो इनटू द चार्ट्स. ओके,
चार्ट्स को हम देखते हैं, 1 सेकेंड, यस। सो चार्ट्स पे अगर हम चल के बात करें, ओके फाइन, निफ्टी की तरह ही फर्स्ट कैंडल के अंदर ही बैंक निफ्टी भी रिकवर किया। सबसे अच्छी बात थी कि हमारा सीपीआर जोन यहां पे हमको दिख रहा है, ये हमारा सीपीआर जोन है, ये पूरा जोन सीपीआर जोन है। सीपीआर जोन को निफ्टी पूरी तरह, बैंक निफ्टी पूरी तरह रिस्पेक्ट करता रहा एंड देन इट गेव अ ब्रेकआउट अबव द सीपीआर जोन। हमने जब अपना ट्रेड कैप्चर किया तो हमने बेसिकली इस मोमेंटम को कैप्चर किया बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर, और बहुत ब्यूटीफुली इस मोमेंटम के अंदर हमारा पैसा भी बना। ठीक है, इट वॉज अ वेरी सिंपल ट्रेड, इट वॉज अ वेरी सिंपल लॉजिक। पहली बात तो बुलिश मोमेंटम यहीं पे क्लियर हो गया था, उसके बाद सीपीआर का अपर क्वेश्चन यहां पे क्लियरली ब्रेकआउट होता दिखा। हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमको पता था 32915 पे हमारा रेजिस्टेंस था, ये ऑलरेडी मार्क्ड है। इनकेस आपने अभी तक रेजिस्टेंस नहीं मार्क किए हो तो मार्क कर लीजिए। हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस और हिस्टोरिकल सपोर्ट बहुत कीमती होते हैं। सो वी कैप्चर्ड दिस मोमेंटम एंड वी मेड गुड मनी इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। नाउ व्हाट आई सॉ वाज, ड्यूरिंग द डे मुझे ये दिख रहा था कि 33912 का जो रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक अगर होता है तो 33297 तक इंडेक्स जा सकता है। सो वी सेट अप आवर ट्रेड, इस लेवल के आसपास हमने अपना एक ट्रेड सेटअप किया था, बट ये लेवल ब्रेक नहीं हो पाया और यहां पे एक भी बुलिश कैंडल हमको नहीं दिखी है, तीनों बेरिश, चारों बेरिश कैंडल्स ही थी। तो उस चक्कर में हमारा ट्रेड सेटअप आगे गया नहीं, इसीलिए हम थर्ड ट्रेड नहीं ले पाए। अदर देन दैट वी टुक 1 ट्रेड इन निफ्टी, 1 ट्रेड इन बैंक निफ्टी, और ये लेवल्स पूरे हमको मिले, हमारा मोमेंटम हमको मिला और हमने पैसा अच्छा बनाया। कल के लिए लेवल्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर कल के क्या लेवल्स रहेंगे हमारे। नाउ इनिशियल सपोर्ट विल कम एट 32809, इसको मार्क कर लीजिए। सपोर्ट 1 विल कम एट 32809। रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका रहेगा ये लेवल जो आज का हाई था 33192, ये आपका आज का रेजिस्टेंस रहेगा, सॉरी कल का रेजिस्टेंस रहेगा, मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको इंडेक्स यहां तक भी जाता हुआ दिख सकता है, दैट इज रेजिस्टेंस 2 विल बी 33425। ठीक है, तो ये लेवल्स हमने कल के लिए डिस्कस कर लिए हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स के, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये लेवल्स बहुत कीमती रहेंगे आपके लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में। नाउ व्हाट वील डू इज वील क्विकली जंप इनटू द नोट सेक्शन। आप में से बहुत से लोगों के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो आप सपोर्ट टीम से रेगुलर बेस पे पूछते हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट, द मोस्ट बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रोरिंग बुल्स इज इट्स सपोर्ट टीम। द सपोर्ट टीम इज ऑलवेज देयर फॉर यू टू आंसर योर क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकल के आते हैं जो आप चाहते हैं मैं आंसर करूं, तो मैं इन वीडियोस में आपके साथ वो आंसर्स डिस्कस कर लेता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपको भी हेल्प मिले। हाउ टू एंटर अ ट्रेड एट करेक्ट बाइंग प्राइस। ठीक है, हाउ टू एंटर अ ट्रेड एट करेक्ट बाइंग प्राइस। आप में से किसी एक का ये सवाल था कि हाउ टू एंटर अ ट्रेड एट करेक्ट बाइंग प्राइस। नाउ एज एन ऑप्शन बायर योर एंट्री एंड एग्जिट आर द मोस्ट क्रूशियल थिंग। ऑप्शन बायर के तौर पर एंट्री और एग्जिट से ही सब कुछ डिफाइन होता है। तो फॉर एग्जांपल आज हमने तो जो लास्ट ट्रेड सेटअप किया था 33200 का कॉल ऑप्शन लिया था, हम इसको बैंक निफ्टी इंडेक्स पे चल के एक बार देखते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स ये रहा, राइट। सो बैंक निफ्टी इंडेक्स ये रहा। बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमने जो कॉल ऑप्शन सेटअप किया था 33200 का, वो हमने किस बेसिस पे किया था? लेट मी जूम इट अप फॉर यू। ओके, यस, जो लास्ट कॉल ऑप्शन सेट किया था हमने वो इस बेसिस पे किया था हमने। 1 सेकेंड, यस। तो अगर आप यहां ध्यान देंगे, इस लेवल पे हमने वो कॉल ऑप्शन सेट किया था। एक सेकंड में काम करता हूं, मैं 33200 का चार्ट ही खोल लेता हूं, तो वो सबसे आसान चीज हो जाएगी आपके लिए। 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन इट फ्रॉम yes, 1 second, 33200, where can I find 33200? 33200 call option. Okay, so 33200 call option here we have. Sorry, it was April call option. Let me search for 8th April call option. Okay, yes. So we have 33800 call option for April. Now let me open up the charts for you. हम इसको चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि आज हमने जो ट्रेड लिया और उस ट्रेड में हम क्यों सक्सेसफुल नहीं, हमको एंट्री मिल पाई। ये उस मेंबर का क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। 1 second. Let me just open up. Yes, 33200 का हमारा कॉल ऑप्शन है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, सो हमारी बाइंग प्राइस कहां पे थी? हमने जो बाइंग प्राइस सेट करी थी वो अप्रोक्सीमेटली हमने सेट करी थी 290 के लेवल के ऊपर। ठीक है, 290 के लेवल को हम एक काम करते हैं, मार्क कर लेते हैं। 290 का लेवल कहां पे है, हम उसको मार्क कर लेते हैं। लेट मी जस्ट ओपन अप द ड्रॉइंग टूल फॉर यू। 290 का लेवल हमारा 295 का लेवल था, इनफैक्ट ये हमारा लेवल है 295 का। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि बाइंग कब करें। मेरा एक बहुत सिंपल सा कहना रहता है कि बाइंग आपको तब करनी है जब आपका कैंडल सस्टेन करे आपके बाइंग प्राइस के ऊपर, या फिर आपका
जो कैंडल है वो क्लोज दे दे आपको बाइंग प्राइस के ऊपर। अगर अब आप यहां पे देखेंगे तो एक भी कैंडल ने हमारी बाइंग प्राइस के ऊपर हमको क्लोज नहीं दिया है। दैट इज द रीजन वी डिडंट एंटर दिस ट्रेड सेटअप। अगर मान लीजिए कोई भी एक कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती, 290 के ऊपर, 295 के ऊपर क्लोज हो जाती, तो हम इस ट्रेड सेटअप में इन हो जाते। बट एक भी कैंडल जो आप यहां पे देखेंगे वो 295 तो छोड़िए, 292, 293 के लेवल पे भी जाके क्लोज नहीं हुई। सो वी डिड नॉट एंटर द ट्रेड सेटअप। कहां पे? ये पूरी कैंडल्स आपको दिख रही हैं, एक भी जाके 295 के ऊपर क्लोज नहीं हुई है। तो आपका बाइंग बहुत मैटर करता है कि आप किस लेवल से बाय कर रहे हैं। आपको सही लेवल से मार्केट में एंट्री करनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके स्टॉप लॉस को आपको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। मान लीजिए हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है और हमारी एंट्री हो भी जाती, उसके बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हमने अपने लोअर क्वेश्चन पे सेट कर रखा है, दैट वाज 269 और 250 लेवल, तो भैया आप स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि मार्केट्स कैन रिवर्स, और अगर रिवर्स होगा तो आपका कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाएगा, स्टॉप लॉस अगर आपका सही तरीके से लगा होगा तो। ठीक है, सो आई होप जिन मेंबर का एक क्वेश्चन है कि एंट्री की पोजीशन कैसे डिफाइन करी जाती, कैसे बनाई जाती है, उनको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। क्योंकि अगर एक भी कैंडल इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रही होती, यहां पे आपको एक ग्रीन कैंडल दिखती, यहां पे आपको एक ग्रीन कैंडल दिखती, कहीं पे भी दिखती, तो हम बाइंग कर लेते। बट जब उस लेवल के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर रही है तो हम बाइंग कैसे करें? क्योंकि ये लेवल हमारा प्रीवियस हाई भी तो है, ये लेवल एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का टूटना जरूरी है, और वो टूटेगा कब? हमारी बाइंग प्राइस के ऊपर, जब प्राइस सस्टेन करेगी। हमने अपनी बाइंग प्राइस ऑलरेडी इंट्राडे हाई के ऊपर रख रखी है, ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, सो दिस वाज वन क्वेश्चन बाय वन ऑफ आवर मेंबर्स। आई होप इट वाज answered a bit, you might have got some help out of it. Now second thing, our support team sent us this screenshot, तो मैं आपके साथ ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। मेंबर का नाम वगैरह तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट देन अगेन just have a look at the conversation this member was having with the support team. Okay, so what is your view on the market? He was asking support team. He was holding some bank nifty call options and उसमें ICICI direct में उनका stop loss activate नहीं हो पाया, वो जो broker यूज कर रहे हैं ICICI direct है, और इसीलिए उनको होल्ड करना पड़ा ऑप्शन। ठीक है, I understand, ऐसा करना पड़ा। Now he wanted to talk to me, so I decided to answer this particular query in this video. Unable to control his emotions and revenge trade and greed making him lose in the stock market. Can you read that? अभी तक वो जो मेंबर हैं, he has already lost approximately 2.2 lakh rupees. And he knows कि वो क्यों हो रहा है. Why is he losing? He knows it very clearly. He is losing because he is unable to control his emotions and he is revenge trading from the market, and that is why he is losing. So let me tell you, my friend, let me tell you very clearly कि ये आपके साथ ही नहीं, ये बहुत से लोगों के साथ स्टॉक मार्केट के अंदर होता है। लोग रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं, यानी कि मार्केट अगर उनके चूजन डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो उनको नाराजगी हो जाती है मार्केट से, उनको बुरा लगने लगता है कि यार ये कैसे हो गया। सो व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू फाइट द मार्केट, एंड आई हैव बीन सेइंग दिस राइट फ्रॉम माय फर्स्ट एनालिसिस वीडियो दैट यू कैन नॉट फाइट द मार्केट माय फ्रेंड, यू कैन ओनली होल्ड द मार्केट्स हैंड एंड यू कैन मूव इन द डायरेक्शन विद द मार्केट। कैन यू डू दैट? यस, यू कैन डू दैट। सेकेंडली, इनकी जो एक दूसरी प्रॉब्लम है, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपनी ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर पाते। इनकी एक प्रॉब्लम ये है, जो वैसे यही सेम प्रॉब्लम बहुत सारे नए इंट्राडे ट्रेडर्स की होती है। देखिए, आपकी ग्रीड आप कब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? मान लीजिए मेरा टारगेट अचीव हो गया, मैंने आज निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर जो फर्स्ट ट्रेड लिया था उसमें 13 पॉइंट का मैंने टारगेट अचीव किया। 13 पॉइंट बहुत कम होते हैं, मैंने उस 13 पॉइंट से 800-900 रुपए बनाए पर लॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों को 800-900 रुपए सफिशिएंट नहीं लगते, उनको लगता है कि नहीं, उनको और ज्यादा अमाउंट की जरूरत है और ज्यादा अमाउंट आना चाहिए। दैट इज ग्रीड। और ज्यादा अमाउंट शायद आ जाता, पर क्या श्योरिटी है? क्या आपको पता है मार्केट कहां जाने वाला है? आपको आपका टारगेट तो पता था ना, टारगेट एग्जिट करो, बैठो, ऑब्जर्व करो मार्केट को, ग्रीडी मत बनो। ग्रीड इज समथिंग दैट विल किल योर ड्रीम्स इन स्टॉक मार्केट। ग्रीड और फियर के इमोशन से दूर रहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट के अंदर एक डिसेंट सक्सेस हासिल कर पाएंगे ना। ये प्रॉब्लम सिर्फ इस मेंबर की नहीं है, ऐसे और भी बहुत से मेंबर्स हैं। इनफैक्ट शायद स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा ही था। हर ट्रेडर शुरुआत में यही मिस्टेक करता है, दैट दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर ग्रीड, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर फियर। अगर 10,000 रुपए बन गया तो 20,000 रुपए चाहिए, 20,000 रुपए बन गया तो 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख बन गया तो 50 लाख चाहिए। नहीं होता है ऐसे काम। Our objective at Roaring Bulls is number 1 to learn and number 2 is to generate 15 to 20%, 15 to 25% monthly returns. When you'll accumulate this monthly return over a period of 1 year, it will be huge. So I hope आपको
काफी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। I will see you in the next video tomorrow. This is Utkarsh Bhargav. You're watching Roaring Bulls, the stock market show, and don't forget to subscribe, my friend.